आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो कोई भी particle is supposed to make a circular motion if it is moving along the circumference of a circle। यदि एक पार्टिकल किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग के चारों तरफ अगर घूम रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, लेट्स हैव अ लुक। Consider this is a circle with its center and there is a particle which is situated at its circumference like this. If this particle is moving along the circumference like this, then we can say that this particle is performing circular। ओके, कि अगर ये पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रही है सरकमफेरेंस के चारों तरफ तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पार्टिकल क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू स्टडी द टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। अब हम सर्कुलर मोशन से जुड़े कुछ टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए फॉर दैट कंसीडर अ सर्कल विथ इट्स सेंटर लाइक दिस and there is a particle which is situated at its circumference. Okay, let at t is equal to 0, time t is equal to 0, this particle is situated at its circumference at this position, and suppose this particle is performing a circular motion। मान लेते हैं कि at time t is equal to 0 पे ये पार्टिकल इस पोजीशन पे लोकेटेड है, सिचुएटेड है और ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। ओके, लाइक दिस इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत कम समय में मान लीजिए कि ये पार्टिकल इस पोजीशन, सपोज दिस इज पोजीशन नंबर 1, इस पोजीशन से मूव करके इस पोजीशन पे, दिस इज पोजीशन नंबर 2, यहाँ तक मूव करके गई। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है इस दोनों पोजीशंस के बीच में वो इतना छोटा डिस्टेंस है कि हम लोग मान सकते हैं कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और एन आर्क। The distance between this position to this position, that is position number 1 to position number 2, is so small that we consider it a straight line or an arc. Okay, let this distance is x। मान लेते हैं ये distance x है, तो यहाँ पे x क्या है? तो here x is the linear displacement between this position to this position. Okay, when at the time t is equal to 0, the particle is situated at this position. At that time, it subtends 0 angle at the center. Okay, and after some interval, when it's moved from here to position number 2, then the radius, which is initially like this, is also shifted from this position to this position. Okay, and this particle subtends some angle at the center. Let this angle is theta. Here theta is what? Theta is the angular displacement. So linear displacement x, angular displacement is theta, and there is a relation between linear displacement and angular displacement। linear displacement और angular displacement के बीच में एक relation होता है। क्या है ये relation? तो जैसा कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि एंगल, आर्क और रेडियस के बीच में एक रिश्ता, एक रिलेशन होती है, एंड दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन 1। This equation also be written as x is equal to r multiplied by theta, that is linear displacement is equal to radius multiplied by angular displacement. Okay, now we will try to understand angular displacement in details. See, what is the nature of angular displacement?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नेचर क्या होता है, वेदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेदर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो as we can see that तो एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख सकते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो x है has got both magnitude as well as direction. So it is a vector quantity and the radius r is also a vector quantity. So angular displacement is a vector quantity. Angular displacement vector quantity है. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, तो हम जानते हैं कि एंगल की यूनिट क्या होती है, एंगल का यूनिट होता है रेडियन. सो ओवर हियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होगी, रेडियन होगी. द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन. अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा. ओके, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन, और उसके लिए हमें याद रखना है राइट हैंड कर्व रूल. क्या क्या याद रखना है, राइट हैंड कर्व रूल. व्हाट इज दिस राइट हैंड कर्व रूल, ये राइट हैंड कर्व रूल क्या है, तो उसके लिए टेक योर राइट हैंड लाइक दिस, अपने राइट हैंड को इस तरह से लीजिए, और हमें जो इस राइट हैंड का फिंगर दिख रहा है आपको, इसका कर्व बनाना है इस तरीके से. ओके, देख रहे हैं आप, ये जो है वो हमारी इनिशियल डायरेक्शन मानी जाएगी, शुरू की डायरेक्शन, और ये जो कर्व इस तरह से फिंगर कर्व बना रही है वो हमारी फाइनल डायरेक्शन मानी जाएगी. यू कैन सी ओवर देयर, दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन एंड द एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड द फाइनल डायरेक्शन. अब हमें ये देखना है कि ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अगर ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमें अपने राइट हैंड का कर्व इस तरीके से बनाना है. लेकिन अगर जब ये पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा लाइक दिस, यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस समय हमें ये जो कर्व बना रहे हैं राइट हैंड का, उसको 180 डिग्री टर्न कर दीजिए. तो कैसा बनेगा, लाइक दिस फिगर. सो अब दोनों में फिगर में थंब के डायरेक्शन को देखिए. जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो उस समय हमें इस तरह से कर्व बनाना है कि हमारा थंब शुड पॉइंट आउटवर्ड, बाहर की तरफ पॉइंट करे. और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो वी हैव टू मेक द कर्व ऑफ योर राइट हैंड फिंगर्स लाइक दिस, कि हमारा थंब इनवर्ड अंदर की तरफ पॉइंट करे. ओके, सो दिस is supposed to be the direction of angular displacement. ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मानी जाएगी. आप उसके पॉइंट को सर्च करने की कोशिश मत कीजिए, ढूंढने की कोशिश मत कीजिए कि वो कहाँ पे है, वो आपको नहीं मिलेगा. हमें मान लेना है, we have to suppose that this is the direction of angular displacement. ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हुई, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इससे जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है. अब हम जानते हैं कि अगर इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, अगर हम इस प्लेन है इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके, तो वो क्या, उसको हम क्या और भी क्या नाम दे सकते हैं, दैट इज द एक्सिस on this plane, axis of rotation of this plane, इस plane का axis of rotation. ओके, तो उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक दूसरा फिगर देखिए, दिस इज अ प्लेन, ओके, एंड देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज सिचुएटेड एट इट्स सर्कमफेरेंस लाइक दिस. यहाँ पे ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस तरीके से. ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी और वो किस तरफ पॉइंट आउट करेगा, बाहर की तरफ, पॉइंटिंग आउटवर्ड. यू कैन सी दैट दिस एरो इज पॉइंटिंग आउटवर्ड. ओके,
एंड इस एरो को हम और भी क्या बोल सकते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड वी कैन आल्सो से दैट दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस प्लेन, इस प्लेन का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब अगर दूसरा प्लेन देखिए, यहाँ पे भी एक पार्टिकल सिचुएटेड है और ये पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस लाइक दिस इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पॉइंटिंग इनवर्ड होगी लाइक दिस। ओके, सो व्हेन अ पार्टिकल is moving in anti-clockwise direction, then the direction of angular displacement is along the perpendicular is on the perpendicular of the plane, that is along the axis of rotation on this plane, okay, and pointing outward. लेकिन जब एक पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन is perpendicular to the plane but pointing inward, okay, like this you can see over there. So now let's come to what is the axis of rotation. Axis of rotation is normal to the plane of rotation, ये plane of rotation है, इस पे अगर हम एक normal draw करते हैं तो that normal is known as the axis of rotation। और कहाँ पे draw करेंगे, at the center। The axis of rotation is normal to the plane of rotation at center. You can see that this is the axis of rotation when particle is moving in anti-clockwise direction, and this is the axis of rotation when particle is moving in clockwise direction. Okay, so now you understand what is the direction of angular displacement. Just memorize it and हमें आगे से ये याद रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, दैट इज द डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, अब जब हम स्टडी करते हैं तो देन वी ऑन ब्लैक बोर्ड यूज ब्लैक बोर्ड, नोटबुक्स और कॉपी, all these are two dimensional figure, ये सभी दो डायमेंशनल फिगर है। और अगर हमें इसको इनवर्ड या आउटवर्ड शो करना है डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट को, तो हम कैसे करेंगे, फॉर दैट वी नीड अ थ्री डायमेंशनल फिगर। तो इसके लिए हमने एक सिंबल बनाया है। क्या है ये सिंबल, कि जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उस समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, along the axis of rotation and pointing outward। तो उसको हम एक सर्कल के अंदर एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। और जब एक पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन पर पॉइंटिंग इनवर्ड लाइक दिस। तो उसको हम एक सर्कल के अंदर क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डॉट, ये क्रॉस जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो कहाँ से आया है, तो आप सभी ने स्क्रू देखा होगा, यू ऑल हैव सीन द स्क्रू। ओके, दिस इज द स्क्रू। अगर सपोज कीजिए ये स्क्रू आपकी तरफ आ रहा है, इसके स्क्रू का जो पॉइंट है, नुकीला पॉइंट है, शार्प पॉइंट, वो आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको क्या दिखता है, एक डॉट दिखती है। लेकिन अगर आप इस स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, कस रहे हैं, तो आपको स्क्रू का पीछे वाला पार्ट दिखता है, पीछे क्या होता है, क्रॉस होता है। तो फ्रॉम देयर वी यहाँ से हमने ये सिंबल उठा लिया है। ओके, सो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने आज सर्कुलर मोशन पढ़ा, जिसमें सर्कुलर मोशन क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या होती है, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, that is x is equal to linear displacement is equal to radius multiplied by angular displacement। angular displacement की नेचर क्या होती है, angular displacement एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, उसका डायरेक्शन along the axis of rotation होता है, और जब वो क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो पॉइंटिंग आउटवर्ड, सॉरी, जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है
So pointing inward along the axis but pointing inward. Okay, जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो along the axis of rotation but pointing outward like this. So that's the end of today. In the next classes we will discuss some more terms related to circular motion.